السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج بھی جو پیدا ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. سورج ڈوبنے سے جان جاتی، سورج ڈوبنے سے جان جاتی ہے. عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان جاتی ہے. عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے. موضوع سامنے گرا اور فتح پڑا سورج واقعی میری عزیز ماں بنا تمام حضرات. اس سے اچھی طرح واقعی کوئی آدم صوفی آدم خود پیدا کرنا ہے. مدرسہ میں آپ سے ہماری دینی اجتماع کے تعلق سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور مہینے کی مناسبت سے، تاریخوں کی مناسبت سے، کیونکہ ذلحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آئندہ اتوار کو شریف بھی جگہ شریف ہے، وہاں ضرور کا موقع نہیں ملے گا. تو اس واسطے فلسفہ قربانی اور صحیح سیرت اوہانا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ و حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور قربانی کی جو اہمیت ہے اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا. تفصیلات میں کئی نام ایسے بڑے بھی سلمان پر کئی مرتبہ وہاں سے بول چکا ہوں. آج جب مختصر سے گفتگو ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کے برگزیدہ قائموں پر گزرے ہیں، جن پر پروردگار عالم نے خلیل ہونے کے مقام سے سرفراز فرمایا تھا، قلب مطمئنہ عطا فرمایا تھا، موصلین کی جماعت میں شامل فرمایا تھا اور آپ کے ذریعے جیسو سینکڑوں انبیاء اور رسول جیسو اس دنیا میں تشریف لائے. خود میرے آقا آل ابراہیم و آل اسماعیل میں، خود میرے آقا آل ابراہیم و آل اسماعیل میں سے ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی ولادت کے تعلق سے کچھ حال بیان فرمائیے، کچھ کیفیت بیان فرمائیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں اپنے جد ابراہیم کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور میری ماں کا خواب ہوں. جب میں پیٹ میں تھا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے بہر روشن ہو، جس سے شام کے بہر روشن ہو. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے تعلق سے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ تفصیلات میں نہیں ہوگا. پہلی بات کی طرف اشارہ تک عنایتاً آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اپنے جد ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں محفوظ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر جدید فرمانے کے بعد صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ بھائی تعالیٰ میری آل میں سے، میری اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم و آل اسماعیل میں سے یہی تھے، بلکہ میراج کے موقع پر سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں کر صحابہ کرام کے سامنے جو میراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی ایسے ایسے دکھتے ہیں اور دیکھو دوسرے آسمان پہ بڑا انبیاء سے ملاقات ہوئی، بڑا نبی سے ملاقات ہوئی، بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر جسو ساتھ میں لمبا ایسے ہوئے سرکار دور جسو ہمیں کرام کی بتاتے جا رہے تھے. جب
यानी सरकार के हम सभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरत जैसे सरकार की सूरत से बहुत ज्यादा मिलते की दुआ से बड़े ही बरकिसा पैगंबर गुजरे हैं और परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेशुमार जैसो इम्तिहानों आजमाइशों की मंजिलों से गुजारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेशुमार इम्तिहान और आजमाइशों की मंजिलों से गुजारा गया, लेकिन तमाम इम्तिहानों आजमाइशों की मंजिल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवार तकमील पर रहते हुए ऐसा कामयाबी हासिल की। तो पिता से भाई साला होता है कि इब्राहिम हम तो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते थे, हम जैसे इसके जरिए तुम्हें मोहसिनी की जमात में शामिल करने यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने बेशुमार जैसे इम्तिहानों आजमाइशों से गुजारा। उनकी इम्तिहानों आजमाइशों की तफसीलात में नहीं जाऊंगा और यकीनन परवरदिगार आलम का ये तरीका रहा है कि हर बंदे को परवरदिगार आलम आजमा, हर बंदे को परवरदिगार आलम मुसीबतों में मुब्तला करके आजमाता है, देखने के लिए इस मुसीबत के वक्त में जैसो इस बला के मौके पर जैसे बला के हालात में बंदे के हाथ में सब्र का दामन रहता या नहीं रहता। मेरी तरफ आता या ना आता, लेकिन बाद बंदों को परवरदिगार आलम जैसो आजमाता है तो ढील दे के आजमाता, मानो गलत देकर आजमाता है, इज्जत और हाथ बजा देकर आजमाता है। देखता है ये है कि देखता ये है कि इस खुशी के हालत में जैसो इस खुशी के हालत में बंदा मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं करता, शुक्र अदा करता है या नहीं करता। यानी हर बंदा मोमिन को परवरदिगार आलम जैसो इम्तिहानों आजमाइशों की मंजिलों से गुजारा जाता है, लेकिन जिसका जैसा मुकाम रहता है उसको उसी तरह इम्तिहान में मुब्तला किया। हर एक को अपने अपने मुकामात के हिसाब से जैसो परवरदिगार आलम जैसो इम्तिहानों आजमाइशों की मंजिलों से गुजारा जाता है और जितना दर्जा बड़ा होता है इम्तिहान उतना बड़ा, जितना मुकाम जैसो बुलंद होता है इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता, उतना ही बंदा आजमाया जाता है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए थे तो पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क के बादल मंडरा रहे, नमरूद की हुकूमत थी और पूरी सरजमीन पर वो बादशाह के सिवा जैसो कोई और दूसरा बादशाह इस जमीन पर नहीं था। नमरूद की हुकूमत चलती थी और उसके हुकूमत में जैसो बुत परस्ती आम हो चुकी, बुत परस्ती लोग अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की जैसो पूजा करते थे, अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करते थे। बुत परस्ती आम हो चुकी थी, शिर्क आम हो चुकी थी। भारत पूरी रोज जमीन पर जैसो तौहीद को मानने वाला, अल्लाह अकबर की सदा लगाने वाला कोई मौजूद नहीं था। उसको पूरी रोज जमीन पर खाली ना सिर्फ दबल के नमरूद की हुकूमत के दौर में, उसके दौर में कोई दुनिया में दूसरा बादशाह नहीं था, वाहिद था अपने दौर में जैसो नमरूद जैसो बादशाह था। ऐसे हालत में, ऐसे माहौल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसो आँख खोलते हैं और देखते हैं कि हजरत जैसो कुफ्र और शिर्क के बादल मंडरा रहे, लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं। तो आपने कहा कि ये बहुत ही चमकदार चीज है, जैसो इसकी जैसो इबादत की जाए तो पूजा जाए चांद, लेकिन जैसे ही रात की तारीकी आती है, चांद निकल जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सलाह लगाते हैं कि मैं किसी डूबने वाली चीज को जैसे माबूद नहीं मानता, मैं किसी डूबने वाली चीज को मैं परस्तिश नहीं करता। उसके बाद तो जब चांद निकलता है तो चांद बड़ा रोशन है, रात की तारीकी में चारों तरफ नूर फैला रहा है, उजाले फैला रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते कि ये मेरा खुदा होगा, मेरा माबूद होगा, लेकिन जब फजर हुई तो जैसे चांद भी डूब गया। तो हजरत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी डूबने वाली चीज को माकूल नहीं मानता, उसकी परस्तिश नहीं करता। तो भारत दोस्तों, आप हक की तलाश में, तौहीद की तलाश में थे और आप देखते हैं कि दोस्तों लोग अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की दोस्तों लोग पूजा कर, उनकी परस्तिश कर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर सदा व्रत करते हैं। वाक़या अक्सर सुना करता हूँ कि लोग दोस्तों मेले पे गए थे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोस्तों खुद खाने में जाके दोस्तों पूरे फूलों की दोस्तों दुर्गत बना देते हैं, कुरानी देकर दोस्तों दुर्गत कर देते हैं, किसी का हाथ काट देते, किसी का पैर काट देते, किसी का नाक काट देते, किसी की दोस्तों गर्दन काट देते हैं और बड़े बुत को दोस्तों वैसे ही छोड़ देते हैं और उसके हाथ में कुरानी देते हैं। लोग जैसे जब मेले से वापिस आते हैं अपने दोस्तों बुत खाने में जाते हैं और बुतों की दुर्गत देखते ही हैरान और परेशान करते हैं, ये कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। तो किसी ने कहा कि दोस्तों एक है नौजवान जो हमारे मामूलों को, हमारे बुतों को दोस्तों हमेशा से दोस्तों बुरा भला कहता है, वो हो सकता है कि उसकी ही कारस्तानी, उसकी ही कारस्तानी और जो बुलाया जाता हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोस्तों नमरूद का खुदाई का दावा कर चुका है, खुदाई का दावा कर चुका है, पूरी तरफ दोस्तों जुल्म सितम की इंतहा है। ऐसे माहौल में, कुफ्र और शिर्क के माहौल में तन्हा इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं और कहते हैं कि जैसे ये मैं समझता हूँ ये तुम देखो जो बड़ा बुत है उसके हाथ पे कुराड़ी है, हो सकता है कि उसी ने ये तमाम छोटे बुतों की देखो ये हालत दुर्गत की है, क्योंकि उसके होते हुए इन्हों की भी पूजा की जा रही थी, इन्हों को जो तो माना जा रहा था तो उसको नागवार गुजरा होगा कि मेरे होते हुए तुम कैसे कर सकते, तुम को किस तरह पूजा जा सकता है, हो सकता है इसकी कारस्तानी में तो मुझसे पूछ लो। तो उनकी जबान से बेसाख्ता निकल जाता है कि इब्राहिम तुम जानते हो कि बुत बोला नहीं कर, इब्राहिम तुम जानते हैं कि बुत बोला नहीं कर सकते। देखते हैं कि माहौल जो तो गर्म है और बोला मान लेते हैं, कहते हैं जब बुत जो तो बोल नहीं सकते तो उनकी परस्तिश क्यों जाए, खुद अपना दिफा नहीं कर, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और जैसे तो उनकी पूजा कैसे की जा सकती है, उनको कैसे पूजा जा सकता है, उनको कैसे माबूद माना जा सकता है, जबकि नफा उनका कुछ नहीं पहुंचा सकते, अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। तो बारह जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो साजिश की जाती है और आपको जो आग में डाला जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान नारे नमरूद में, और नारे नमरूद ऐसी कि भाई 3 मील के पास से ऊपर से अगर कोई चरित्र खड़ी थी उड़ जाता तो आग की तपिश की वजह से उसके जैसो पर जल जाता, इतनी शिद्दत की आग थी। और जिब्रील के जरिए दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया और विवादों में आता है, बाद विवादों में आता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक उस आग में रखा गया, 40 दिन तक दोस्तों आग में रखा गया। और बाहर दोस्तों नमरूद के की कौम ये समझ रही थी कि 40 दिन हो चुके हैं, इसमें तो अब तक जो जल के खाक हो गए होंगे, अब तक जो पनाह हो गए होंगे, मिट गए होंगे, खाक में मिल गए होंगे, लेकिन परवरदिगार आलम ने उस आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दोस्तों जन्नत कायम कर दी। जन्नत में आप आराम से दोस्तों तैर रहे थे, वहाँ का पानी पी रहे थे, वहाँ का तैर पी रहे थे, वहाँ का दोस्तों दरिया से जोता इस्तेफादा हासिल कर रहे थे, बड़े इत्मीनान के साथ दोस्तों आप दोस्तों उस आग में दोस्तों महफूज थे। 40 दिन के बाद दोस्तों जब आग को बुझाएगा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टहलते हुए आते हैं, ऐसे टहलते हुए आते हैं जिस तरह कोई चमन में टहलता है, चमन में टहलता है। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्तों शहर बदल कर दिया जाता है, आप दोस्तों शहर से दूर आ जाते हैं और आप दोस्तों आपकी जोजा, सबसे पहली जोजा बीवी सारा से आपका दोस्तों निकाह होता है और आपकी बीवी सारा की एक बांधी थी बीवी हाजरा जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम के जैसो हिजरत में जैसो आपके साथ आपकी बीवी के साथ भी जैसो साथ साथ जैसो दीवार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ मंजिलों से जैसो गुजारा गया ध्यानों आजमाइशों की मंजिलों से जैसो गुजारा गया उसकी तफसीलात में नहीं रहना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 86 साल की उम्र शरीफ हो चुकी है, दुआ करते जाते हैं, इब्तिला करते जाते हैं कि औलाद का चिराग अब तक जो रोशन नहीं है। 86 साल की उम्र शरीफ में बीवी सारा के मशवरे पर जो सो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सो बीवी हाजिरा से निकाह करते हैं और उनके बदन से जो सो एक नूर नजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब से जिगर नूर नजर हसीन और जमील साहबजादे तवज्जुल होते हैं जिनका नाम जो सो इस्माइल रखा गया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत ही शहीद जैसो साहबजादे थे, एक लोसे थे और बड़े हसीन और जमील थे। बड़े जैसो फिर परवरदिगार जैसो देखता है कि इब्राहिम के दिल में मेरी मोहब्बत है या मोहब्बत फितरी गालिब आ आजमाने के लिए जो बीवी हाजिरा के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि अपने नौमौजूद साहबजादे और हाजिरा को जो तो रेगिस्तान अरब में जहाँ पर सफा और मरवा की पहाड़ी है उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान तन्हे तना छोड़ दो। ये अल्लाह का हुक्म आया था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं सोचा कि मेरे बाद इनका क्या होगा, बस अल्लाह का हुक्म आया तो उन दोनों पहाड़ों के दरमियान जो सो छोड़कर जब रवाना होने लगते तो बीवी हाजिरा पूछती है इस हालत में आप जैसो कहाँ जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं देते तो बीवी हाजिरा जैसो फिर पूछती है क्या ये अल्लाह का हुक्म है। तो कहा कि या हाँ अल्लाह का हुक्म, हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप बेखौफ जाइए, परवरदिगार आलम हमें ज़ाये होने नहीं। और आज अल्लाह के फजल करम से गुजारे की आज जैसो आज दुनिया के हर मुल्क का फल जैसो मक्के मौजूद हर मुल्क का फल मक्के मौजूद में मिलता है। और रिवाज में आता है कि बीबी हाजिरा इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसो जब प्यास की तपिश से जैसो दिलक रहे थे तो सफा और मरवा दोनों पहाड़ों के दरमियान जैसा चक्कर लगाती है और साथ ही चक्कर खत्म होने से पहले एक होने वाले नबी नूबुव्वत से सरफराज नहीं किए गए, जल बदल पैगंबर जैसो अभी नूबुव्वत से सरफराज नहीं किए गए। आप जैसो एड़िया लगड़ते हैं तो रेगिस्तान अरब में जैसो चश्मा निकल आता है, पानी का चश्मा आता है, बुलंद होता है। बीवी हाजिरा इस मंजर को देखकर दौड़ते हुए आती है और उस चश्मे के अतराफ जैसो एक किला बना देती है, पानी को जैसो जमा करती है। और उसके बाद रिवायतों में आता है कि बीवी हाजिरा उस पानी को जैसो जमजम कह के पुकार यानी रुक जा। तो मुफस्सिर किराम बयान करते हैं अगर बीवी हाजिरा उस पानी को जमजम कह के नहीं पुकारती तो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। दुनिया में फैल जाता कौन सा पानी अभी नबी नहीं नहीं किए गए होने वाले नबी के मोजज़े का इजहार होता है। और आज 5000-6000 साल से वो जमजम का कुआं जारी है, आज भी जारी है, ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। दुनिया में कोई ऐसा पानी मौजूद नहीं। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान जैसो उस पानी को लेके गए, रिसर्च किए बड़े बड़े मुल्कों में, दुश्मनों ने अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर मुल्क में जैसो पानी पर रिसर्च किया गया है कि आखिर इसमें ऐसे क्या केमिकल, ऐसे क्या बैक्टीरिया है जो हर मर्द की शिफा मौजूद, हर मर्द की शिफा मौजूद है। कौन सा पानी है जो भी नबी नहीं उनके पानी है। आज गुजरात के हजारों लाखों की तादाद में जाते हैं और उम्रे के लिए भी जैसे रोजाना हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। लोग वहाँ पर पानी भी पीते हैं, वजू भी करते हैं, पानी नहाते भी हैं। लाखों की तादाद में लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी वो चश्मा खत्म नहीं हो, कुछ
नहीं हुआ। आज भी जारी है, क़यामत तक जारी हो सारी रहेगा। और जो सो परवरदिगार आलम ने बीबी हाजरा की इस अदा को हज और उम्रे में शामिल है। हर हाजी पर, हर उम्रा करने वाले पे ये लाजमी है कि सफा और मरवा के दो पहाड़ियों के दरमियान जो सो दौड़े काहे के वास्ते अपनी एक मुकर्रर बंदी की सुन्नत को जारी और सारी रखने के लिए क़यामत तक ये सिलसिला जारी है। सफा और मरवा के दरमियान जो सो हर हाजी, हर उम्रा करने वाला दौड़ लगाता है। और जो सो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ चले जाते हैं, उसके बाद रिवायतों में आता है कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ जो तो 11 साल हुई या 13 साल हुई। उस अवस्था में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते जाते थे, लेकिन फिर भी जो सो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे तो परवरदिगार आलम ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने दफ्तर दिए अपने नूर नज़र को अपने हाथ से जुबा करो। 3 दिन मुसलसल आप बदलाए। सुबह के आप बयान करते कि अब्दुल्ला का खाब भी वही का दर्जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो होके गई वही नाज़िल नहीं हुई, खाब में बदलाया गया। तो आप जैसे उसके लिए तैयार हो जाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ पर उजाने के बाद लाखों की तादाद में कुर्बानी देते हैं। तो कुर्बानी का मंजर के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो जाते हैं। मुख्तलिफ रिवायत से आएंगे हज़रत इस्माइल पर छुरी जल भी जाती है, तन सर से जुदा भी हो जाता है। आंखों से पट्टी जब खोल के देखते हैं तो दुबा जैसे दुआ किया, दुबा किया हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ठहरे में मुस्कुराते जाते हैं और जो गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहीम हम तो तुम्हें आजमा रहे, हमने तो तुम्हें आजमाइश और इम्तिहानों की मंजिलों से गुजार रहे थे। है इब्राहीम इसकी कुर्बानी के जरिए तुम्हें जैसो मोहसिनी की जमात में शामिल करते हैं। इस कुर्बानी की जरूरत नहीं है, जो दुआ आया है उसको लो और अपने फर्जंद की बजाय उसकी कुर्बानी पेश करो। और ये सुन्नत इब्राहीमी हजारों साल से जारी है, आज भी जारी है, क़यामत जारी और सारी रहेगी। और सरकार ने ताकीद फरमाई कि लोगों जैसो कुर्बानी दो, खुशी खुशी दो। कुर्बानी क्या है, जिससे हमको मिलने वाला क्या है? तो मेरे आका ने साथ फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे जद इब्राहीम की सुन्नत, और इससे मिलने वाला क्या है तो सुनो कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने बाल है, हर बाल के बस परवरदिगार आलम एक एक नेकी अता फरमाए, एक एक नेकी अता फरमाए। कुर्बानी दो, खुशी खुशी दो। और जो कुर्बानी देने की इस्तेताअत रखता है उसके बावजूद भी कुर्बानी ना दे तो वो बेहतर है कि हमारी ईदगाह को ना अपना मुसल्ला अलग कर दे। और हम सब पे बहुत आते रहते हैं, लोग ऐसे भी कहते हैं कि पूरे घर की तरफ से जैसो ये कुर्बानी दे दी जाए तो काफी बात ऐसी नहीं भाई, जिस जिस पर वाजिब है उसके लिए जरूरी है कि कुर्बानी देना वाजिब। अब कुर्बानी देना किस पे वाजिब है? जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब यानी साहिब निसाब से मुराद ये है जिस तरह ज़कात का मामला है, हर साहिब निसाब मुसलमान को जो 40 में से एक हिस्सा साल में एक मरतबा निकालना है। लेकिन जैसो ज़कात के लिए 1 साल की शर्त, माल पे जैसो 1 साल का गुजर हो जाए, 1 साल हो जाए तो उस पर जैसो ज़कात वाजिब है। लेकिन ज़कात जैसो कुर्बानी में ये मामला नहीं है, अगर वो ईद के दिन भी जैसो साहिब निसाब हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब, उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो हर साहिब निसाब मुसलमान पर जैसो कुर्बानी वाजिब है। घर के एक तरफ से नहीं भाई, तमाम की तरफ से जैसो जिन जिन पर वाजिब है उनकी तरफ से अदा करना लाजमी है, जरूरी लाजमी है, जरूरी है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी देने वाले बेहतर है अपने हाथ से कुर्बानी। क्या ये नहीं हो सकता तो कम अज कम जैसो
कुर्बानी दे दो अपने को जानवर के करीब है। और मेरे आना इशारा फरमाया कि जिस घर में कुर्बानी दी जाती है उस मुकाम पर परवरदिगार आलम की रहमतें बरकतें नाज़िल होती हैं, रहमतें बरकतें नाज़िल होती है। और कुर्बानी जो खुशी खुशी जो और कुर्बानी देने के बाद जो 3 हिस्से खाए थे, 3 हिस्से, एक अपने लिए, अपने एक अजीज और भाई के लिए, और एक जो गरीब और मिस्किनों में, गरीब और मिस्किनों, उसमें भी जो हिस्सा कायम फरमाया गया। गरीबों मिस्किनों के लिए जो कायम फरमाया गया कि जो लोग तुम्हारे मालों में उनका भी हक है जो तुमसे सवाल नहीं करते, अपनी नफ्स की वजह से दराज नहीं करते, उनका भी हक कायम फरमाया है, हिस्सा कायम फरमाया गया। तो हर इंसान मुसलमान को वाजिब है और 3 हिस्से करना है। और 3 हिस्से में जैसे एक अपने लिए यकीनन है, दूसरे अजीजों खारिज के लिए, और तीसरा जैसो गरीबों मिस्किनों के लिए जैसो हमको देना है। और कुर्बानी देने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई ना सिर्फ जैसो जानवर को ला के जुबा करना मकसद है, बल्कि उसके जरिए अपने आप में तक़वा और परहेज़गारी करना। मेरा आने फरमाया कि लोग ईद के दिन परवरदिगार के पास कुर्बानी का ना जानवर पहुंचता है, ना उसका गोश्त पहुंचता है, ना उसका फूल पहुंचता है, ना उसके हड्डियां पहुंचता है, जो कुछ पहुंचता है तुम्हारा तक़वा और परहेज़गारी हो, तक़वा और परहेज़गारी। मकसद ये होना है कि जैसे आज अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में मैं जानवर की कुर्बानी दे रहा हूँ, कल वक्त आए तो माँ की और अपनी जान की, अपनी आल औलाद की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ये जज्बा ईसा और कुर्बानी पैदा करने का नाम ही कुर्बानी है। कुर्बानी जानवर को काटना, भाई यकीनन जो जानवर को काटने के बाद इतराज या तस्लीम नहीं करो, मारोगे तो पूरे का पूरा रख देते हैं भाई। और साहिब निसाब मुसलमान मैं समझता हूँ कि वो होता है जो साल तमाम गोश्त खाता है, साल तमाम अल्लाह के बंदों से जो गोश्त खाते हैं। फिर दोस्तों ईद के दिन जो अगर पूरा अपने लिए रखेंगे तो फिर गरीब और मिस्किनों का क्या होगा उनका भी ख्याल जैसो हमको रखना है, तक़वा और परहेज़गारी पैदा करना है। और दूसरे जैसो अपने बस्ती में अपने दोस्त अहबाब को भी ये बोलिए कि जैसो ये तरफ राग़िब कराइए, उसको भी तवज्जो कराइए कि पाकी की तरफ, साफ सफाई, साफ सफाई। और हमारे भाई जैसो जानवर की जो आदत होती है, जो भी चीज फेंकने की होती है उसे रोड पे फेंक दे, रोड पे फेंक दे। मैं समझता हूँ वजह की जानिब से तो थैलियाँ दी जा रही है तो दी जा रही है तो उसे इस्तेमाल करिए, उसमें मान के जैसो गार्बेज में जैसो उसके बाद जैसो कूड़ेदान में जैसो डालिए। लेकिन सफाई का ख्याल रखिए अपने महल्ले में और अपने करीब में जितना भी हो सके जैसो ज्यादा से ज्यादा सफाई का इंतजाम करना है, क्योंकि पाकी आधा ईमान, पाकी आधा ईमान। और पाकी से पूरा जिसम की पाकी है यकीनन है, लेकिन साथ ही साथ नफ्स की पाकी, नफ्स की पाकी। और नफ्स पाक उस वक्त होता जब हमें तक़वा और परहेज़गारी बनती, हमें रिज़ाए इलाही का मामला पैदा हो। एक अक्सर मिसाल रहता हूँ कि जो अल्लाह राजी 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 जो हम करते रहते हैं, क्या जो हम दिन में 1000 मरतबा पुकार करके थे अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह से मैं राजी हूँ, अल्लाह से मैं राजी हूँ, तो बात मुकम्मिल होने वाली नहीं है, उस वक्त तक मुकम्मिल होने वाली नहीं है। वहाँ से भी अगर सदा ना आए या इशारा ना आए, क्या बंदे मैं भी तुझसे राजी, मैं भी तुझसे राजी हूँ, से मुकाम पैदा होता है, यकीनन पैदा होता है। एक बंदे मोमिन का अमल, हर नेक अमल जैसो, नेक अमल जैसो रिज़ाए इलाही, अल्लाह के रिज़ा हासिल, कुछ नहीं हासिल करने के लिए, रियाकारी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि मैं 4 बकरे काटा, मैं 4 बकरे काटा, मैं 2 बैलों में हिस्सा लिया, मैं 1 बकरा काटा, बरन रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि तक़वा और परहेज़गारी पैदा करना है। फिर एक मरतबा आप तमाम हज़रात से गुजारिश है
کہ آئندہ اتوار کو 5:30 بجے انشاءاللہ ہم نماز اثر جو درگاہ شریف میں ادا کریں گے. اثر سے مغرب ختم قرآن ہوگا اور بعد مغرب مختصر سی محفل نعت ہوگی. اس کے بعد سمجھا نمازی کی رسم انجام دی جائے گی اور جو عشاء کی نماز کے بعد آپ تمام حضرات کے جیسے تناول تبرک کا جیسے اہتمام جیسے کبوتر خانہ قدیم میں کیا جا رہا ہے. 73واں ملک شریف حضرت ابوالفیض سید سجاد علی صاحب صوفی درویش حسنی حسنی منایا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ میں 2 سبق شرکت کروں. میں 2 سبق شرکت فرمائیں. انشاءاللہ 5:30 بجے آپ تمام حضرات سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول